Today we are at the Step Up FB page. Now we've started a small initiative known as the Step Up Show. That'll be small 10 minutes or 15 minutes of knowledge bits that me and Glancy have been collecting over this lockdown so that we can share it with everybody and add value to your life. So today's topic that we have thought is the most mispronounced words in the English dictionary. Glancy, can you share some of the mispronounced word, or maybe I'm pronouncing it also incorrect? Hi, Komal. Nice to see you again. Yes. So very quickly, I'm just gonna focus on certain words जो हम लोग इनफैक्ट हमारे देश में, क्योंकि हम लोग हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं और कॉमनली काफी टाइम्स हम लोग थोड़ा सा उसको जैसे इंग्लिश का जो लैंग्वेज है उसके थोड़ा सा परे जाके हम लोग थोड़ा अलग से बोल देते हैं. तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, मैं आपको आज फटाफट बताने वाली हूँ. One of the simplest words that we often when we are having a conversation is the word say, say. Okay, so I was saying to him, no, let's go to work together. I say, he says. Okay, now what happens is that he says or she says. हम लोग काफी बार ऐसे बोलते हैं कि says. Actually, say is to be pronounced say, और says का जो pronunciation है वो है says. तो ये आप Okay. ध्यान रखिए कि बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन अगर आप कोई इंटरव्यू पे जाते हो ना, तो ये जो वर्ड है ना, इमीडिएटली लोगों को पता चलता है भाई ये तो ज्यादा इतना उन्होंने अपने इंग्लिश पे काम नहीं किया है. तो छोटा Correct. वर्ड है. सेज इज द प्रोनाउंसिएशन SEZ. तो ये एक Correct. वर्ड हो. Right. दूसरा जो वर्ड है जो हम लोग काफी बार हम लोग स्पेशली साउथ इंडियन जो हम लोग यूज करते हैं, और वो है नंबर 4. FOUR. अभी क्या होता है, अगर हम लोग 4 बोलते हैं तो ठीक, बहुत अच्छे. अगर Right. हम लोग को 14 बोलना है तो काफी बार उसका जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही अलग से आ जाता है. तो 4 और 14 नॉट 14, 14. वापस Correct. से लेंगे कोई वर्ड को. फॉर. ओके, FOUR. फॉर नहीं है, 4 है. और 14 का अगर हम लोग बताते हैं नंबर 4 and 0, इट इज 40. तो काफी बार वहां पर भी लोग थोड़े से उसको कुछ अलग ही बुलाते हैं, जो मैं रेप्लिकेट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं भी अपना इंग्लिश भूल जाऊंगी. लेकिन सो 4 is 40, 4 and 14. So little bit of focus. The word for, FOUR, is pronounced for, 14 and 40. Okay. Right. The Right. next word. The next word I Correct. will move to very quickly. Again, we have a mistake we make. The word parent. PARENT. It is pair as in PAIR. पैर वो साउंड है. पैर या पैरों का जो पैर है वो साउंड है. Correct. पैर इंट. पैर इंट. बहुत टाइम्स उसको हम लोग अलग से बोलते हैं, पैरेंट. पैरेंट बोलते हैं हम लोग हमारी भाषा में. हम लोग थोड़ा सा Correct. हिंदी कुछ तो आ जाता है. इट इज Correct. पैर. तो आप याद रखो कि पैरों को पेरेंट, कनेक्टेड विथ योर पेरेंट्स, उनके पाँव छूना, तो पेरेंट ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन है. Correct. ठीक है, बहुत Correct. छोटी Correct. बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. दूसरा Yes. जो आजकल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्पेशली बहुत ही हम लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं, एंड द वर्ड इज डेवलप. Okay, now it is spelled DEVELOP, but the actual pronunciation, which we often get, we often say, we say develop, we say developing, development. Correct. No, the correct pronunciation is development, developing. So it is Correct. developing economies, the development of a nation. So it's a very small word, but it is so commonly used, and it is better to focus के अगर हम लोग ये छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग अच्छे से प्रोनाउंस करें ना, तो काफी हमारे पर्सोना में, प्रेजेंटेशन में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा. Again, Yes. very quickly, I will look at another couple of words. Yeah. Again, the word where, WHERE. Again, we often pronounce it var, where or were.
you hear people saying where. The word is where. Where are you going, not where are you going. कहीं पे Correct. उनका जो sound जो है, आप अगर सुनेंगे अपने आप को, it has to be Correct. where. So Right. that is again a very simple word. Where are you going? WHERE, you know, and try to get that right. Right. Another word which people get wrong. Uh, the word is comfortable. Comfortable. The Correct. word is spelled comfortable. अभी Correct. इंग्लिश का जो एक बहुत ही अजीब सा उसका जो स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन है, Right. बहुत ही अजीब और गरीब है. We'll True. accept that. Right. लेकिन comfortable नहीं है. You know, don't pronounce it the way it is spelled. It Correct. is comfortable. Right. Comfortable. And Correct. of course, then you can get more of the breakup and stuff. But at this session, I'm not going to go into extreme complication explanations. Correct. Again, last two words I want to give you is the word capacity. Capacity. It's not Right. capacity. It's not capacity. It's cup, as in cup. Chai peene ka cup. Correct. Capacity. And Correct. the last word I want to give you is itinerary. Okay, itinerary. Itinerary. हम लोग बहुत बार itinerary बोल देते हैं, Correct. ठीक है, Correct. ठीक चलता है, हम लोग समझ जाते हैं, Right. लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन उसका जो स्पेलिंग है वो है itinerary. ठीक है, बस Correct. आज के लिए बस इतना ही कोमल, ज्यादा ज्ञान Yes. नहीं देना है. Definitely, I think Lancy, looking at, I mean, hearing you today on these topics, I mean, these are small things, but इससे क्या होता है कि सामने वाले के नजर में, सामने वाले के दिमाग में एक इमेज सी बनती है कि कितनी आपकी पकड़ है इस लैंग्वेज पे. ऑल्सो मैं एक टिप देना चाहूंगा इस टॉपिक पर कि लोगों को कई बार दिक्कत होती है क्योंकि कई लोग इंग्लिश जो है वो पढ़कर सीखते हैं. मेरी एडवाइस लोगों को ये भी होती है कि इंग्लिश जब आप पढ़कर सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का चैलेंज हमेशा रहता है. तो उसके लिए मेरे पास दो एडवाइसेस हैं. पहली एडवाइस ये होगी कि आप लोग इंग्लिश में मूवीज या फिर आप जो है वो वेब सीरीज देखिए विदाउट सबटाइटल्स. ये सबटाइटल्स निकालने की वजह से आई फील कि लोगों का थोड़ा डिपेंडेंसी जो है हट जाता है टेक्स्ट पढ़ने पर और सुनने पर ज्यादा होता है. तो जो सुनी हुई इंग्लिश होती है उसमें प्रोनाउंसिएशन, अभी आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इट राइट, प्रोनाउंसिएशन एज द वर्ड हैज टू बी, वो आपको काफी बेहतर सुनने में मिलता है. और दूसरी चीज मैं चाहता हूं कि आप करें आपका इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कि जो स्पोर्ट्स कमेंट्री भी है, मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्पोर्ट्स कमेंट्री सिर्फ हिंदी में सुनते हैं. सो मेरी एक एडवाइस ये है उनके लिए कि आप स्पोर्ट्स कमेंट्री भी इंग्लिश में सुनिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का वो स्पोकन इंग्लिश की तरफ भी है. सो आप सिर्फ यही मत सोचिए कि आपको ग्रामर ही देखना है या आपको सिर्फ सही वर्ड्स ही प्लेस करने हैं, बट स्पोकन इंग्लिश इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप जहां पर आप ये सीख जाएंगे कि मुझे डेली लेवल पे जो कम्युनिकेशन करना है वो कैसे मैं इंप्रूव कर पाऊंगा. अगर मैंने वो कर लिया तो मेरा आधा जॉब इज डन. एंड माय फाइनल एडवाइस टुडे फॉर पीपल इज दैट जब भी आपको कोई डाउट आए कि ये वर्ड को स्पेल कैसे करते हैं, तो आई श्योर काफी लोगों को पता होगा, बट आप गूगल में कोई वर्ड डालते हैं, उसको सर्च करेंगे तो आपके पास एक साउंड्स लाइक करके एक माइक या फिर एक स्पीकर भी कॉर्नर में आता है, तो उसको दबाइए, तो उस पर से आपको वर्ड जो है वो सुनने में भी मिलेगा. सो वंस यू आर एबल टू हियर दैट वर्ड, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इसको किस तरीके से कहा जा रहा है. तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन से काफी लोगों का एक इमेज पूरी तरह बदल जाता है, एंड दैट हेल्प्स एवरीबडी अ लॉट. सो today what we wanted to do was just to rack your brains about a little bit of few different English words. हम ये ऐसे इवेंट्स और भी लाते रहेंगे. हम चाहेंगे कि आप कमेंट करिए इस वीडियो के सेक्शन में कि किस वर्ड्स को आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए. फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. आई एम प्रीटी श्योर आज आपको कोई ना कोई एक वर्ड ऐसे मिला होगा जिसको आपने प्रोनाउंस करने में या प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत आई होगी, जैसे ये दो वर्ड्स हैं. ग्लेंसी, योर फाइनल. एब्सोल्युटली, जो कहा एकदम एकदम सही कहा. रुचि जो है आपको कौन से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कमेंट्री आपने कहा, एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ टॉपिक यू विल टेक effort to learn the language and to understand. So that's all from us at this moment. Thank you, Komal.
All the very best. Do follow, share, subscribe, and hopefully we give you small bits and you will be able to step up in life. Thank you so much, guys. Thanks. Bye.